Hi students. So as massive was put up in a group, आज हम लोग डिस्कस करें एक रिव्यू अबाउट योर सरफेस केमिस्ट्री. Surface chemistry. Now regarding this chapter बच्चे, surface chemistry, this is chapter as per general science. जैसे आप लोग बच्चे 9th या 10th में पढ़ते हो ना, you people pick up some definitions, आप उनको practice करते हो, तो it is a chapter like that general science. Now, this chapter, surface chemistry, has been divided into three sections. One is adsorption phenomena. Second is by name your catalyst. And third is colloids. So these are three topics in this chapter by name as a surface chemistry. Let's start with its first part as adsorption. हम इससे बच्चों स्टार्ट करते हैं. For certain number of students, adsorption is a new word. The word which is much more common to us is by name as absorption. तो यहाँ पे absorption नहीं बचे. This is phenomena by name as adsorption. जितनी हम लोग कैटालिटिकल एक्टिविटीज स्टडी करते हैं ना सिलेबस में, तो ऑलमोस्ट ऑल दोज कैटालिटिकल एक्टिविटीज, कोई कैटलिस्ट कैसे काम करता है, वो कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करता है, क्या पैरामीटर्स हैं, तो ऑल दोज एक्टिविटीज आर बेसिकली गवर्न्ड बाय दिस प्रिंसिपल एडसॉर्प्शन. व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस बच्चे? एक ऑब्जर्वेशन की टर्म्स पे देखो. से यू पीपल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉटन और अ स्पंज and there is some bowl which contains water. आपने वो कॉटन या स्पंज आपने उस बाउल में रख दिया जिसमें वाटर है. दैट कॉटन और स्पंज विल सोक दैट वाटर कंप्लीटली. एम आई राइट? पूरा पूरा पानी बचे वो सोक कर लेगा कॉटन या स्पंज. तो व्हाट यू विल से दैट टाइम, वाटर हैज पेनिट्रेटेड डीप इनटू स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज और कॉटन और नॉट. अरे बच्चे दिलजीत, क्या हम ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं बच्चे कि जैसे आप एक कॉटन या स्पंज आप किसी बाउल में रखेंगे जिसमें पानी है, तो दैट्स कॉटन और स्पंज विल सोक ऑल वाटर कंप्लीटली. Yes, sir. क्या बच्चे सारा दैट्स ओके? क्लियर है बच्चे? So Yes, sir. in that manner, we can make a statement that water has penetrated deep into structure of cotton or a sponge. That is a phenomenon called as a absorption. Right? Now, what is adsorption? मान लीजिए बच्चे, this is some substance X. It is some the structure, and it has been put up in some closed container. मैं इसे बच्चे किसी closed container में place करता हूँ, substance X को, and there is some foreign substance Y. That may be some gas, right? If conditions of adsorption are appropriately maintained, what will happen? All chemical species, all molecules or atoms or ions of Y will stick to surface of substance H. A very little more number of molecules may penetrate deep into structure, but majorities will stay on its surface only. So this is phenomena called as adsorption. ये है बच्चे adsorption. What will be absorption as a counterpart? Absorption क्या बनेगा? So this is substance, say some substance H, and it is placed in some closed container with some other substance, say Z. So that substance Z will penetrate deep into its structure. हरी बच्चे, सो मैं यहाँ पे मुझे एब्जॉर्प्शन में क्या मेंशन करूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन स्पीशी say Y is more on surface of H and little in bulk of H. And what will be statement made here? Concentration of foreign species is more in bulk
of substance X and little on surface of X. ये है बच्चे दोनों में बेसिक डिफरेंस. अरे बच्चों, got it बच्चे? Clear it? As a basic definition. Now we need to know how one substance can stay on surface of other substance. जी बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे हम लोग कुछ यहाँ पे हम इसके कुछ components पिक करते हैं. Let's try to correlate it in manner. Components of adsorption. There are two prime components, adsorbate, and second is by name as a adsorbent. So these are two components of adsorption. अब सी बच्चे, यहाँ पे बच्चे what I'm doing, adsorbent is foreign species, Y, and adsorbent is species X. ये ना बच्चे, जैसे मैं इसके बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स पिक करने शुरू करूंगा ना, then exactly this definition will be more clear to you. तो presently just is a superficially बच्चे देखो, तो adsorption has two components as adsorbate and adsorbent. Now still question which comes to your mind is कि how one substance Y can stay on the surface of other substance X. इसके लिए बच्चे हम एक बार अपना कुछ स्ट्रक्चर्स पिक करते हैं. Let me give you a structure of charcoal. Like say बच्चे another can pick up as silica. हरी बच्चे, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को, चारकोल मीन्स कार्बन एंड सिलिका मीन्स SiO2 बच्चे, क्या आपको इन दोनों के बच्चे स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? जल्दी बच्चों फटाफट हाँ देखो जरा. राशि, डू यू फाइंड समथिंग कॉमन इन स्ट्रक्चर ऑफ चारकोल एंड सिलिका? So carbon family. जी बच्चे, what else? Diljit, are you able to notice the difference between I missed the thing which is similar between these two structures, charcoal and silica? दोनों का network structure है बच्चे, that's a clue to you. हाँ जी बच्चे, दिलजीत नहीं? No, sir. नहीं. Sana, are you able to trace बच्चे what is common between these two structures? Sir, I'm guessing double bond structures. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे, you're going wrong direction. नहीं बच्चे. See, what is the commonness? Let me present structure of charcoal. It is carbon only. कार्बन बच्चे अपने सराउंडिंग में टेट्रा कोवलेंसी शो करेगी. So lattice. Yes बच्चे. तो if this has been taken as surface, do you see बच्चे, these will remain always empty vacant valencies. ये कभी फिल नहीं हो सकती. जो भी आइटम कार्बन के सरफेस पे लाई करेंगे उनकी वैलेंसी कभी भी पूरी नहीं होगी बच्चे, और जो भी कार्बन बल्क में लाई करेंगे देयर वैलेंसीज विल बी कंप्लीट. आर यू एबल टू नोटिस? देखो बच्चों, दिलजीत रिलेट कर पा रहे हो बच्चे? If I talk about Yes, sir. I talk about this carbon with red circle, their covalency 4 is maintained. But if you see carbon onto the surface with the blue ink, their valency will be never complete. इनकी वैलेंसी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी बच्चे. देख पा रहे हो दिलजीत, लक्ष्य, क्या इंफॉर्मेशन क्लियर है बच्चे? यशिता, राशि, जल्दी आप लोग बच्चे देखो जरा. है ये राशि, इज इट ओके बच्चे? क्लियर है? Yes, sir. सना, इट्स ओके बच्चे? क्लियर है? Yes, sir. जी बेटा. नाउ अब this is I'm taking my substance by name as a adsorbate. So let me take another structure, SiO2. SiO2 बच्चे डबल बॉन्ड्स नहीं बनाएगा. ये हमने पी ब्लॉक कार्बन फार्मिंग में डिस्कस किया था, इफ यू रिकॉल, अगर याद करो हमने कार्बन फार्मिंग में डिस्कस किया था. तो SiO2 कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव 3p2p ओवरलैप. तो यहाँ पे बच्चे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा.
दिलजीत रिकॉल कर पा रहे हो बच्चे? Yes, sir. सिमिलरली बच्चे, डू यू सी द सेम पार्ट? दीज आर वेकेंट वैलेंसेस जो कभी फिलअप नहीं होंगी. देख पा रहे हो बच्चों? सो व्हाट विल दिस एडसॉर्बेट? तो अगर आप इसे यहाँ पे आप इसे बच्चे चेक करो, इस सब्सटेंस एक्स के सरफेस पे देयर विल बी सर्टेन फ्री वैलेंसीज जो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी बच्चे. तो जैसे फॉरेन सब्सटेंस इनके कांटेक्ट में आएगा, इट विल ट्राई टू हेल्प टू मेंटेन दोज वैलेंसीज. वो उन वेकेंट बॉन्ड्स को यूज करेगा सब्सटेंस एक्स को स्टेबलाइज करने के लिए. तो दिस इज हाउ द सब्सटेंस वाई stays on surface of X. Are you bachche? Now, are you able to understand what should be characteristics of adsorbent? अगर आपको मैं एग्जाम में अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, which of the following is capable of behaving as an adsorbent? तो adsorbent is charcoal, adsorbent is silica. So will you be able to identify a substance as an adsorbent बच्चे? Any substance which has a network structure and whose surface valencies are not filled completely. So that will be called as an adsorbent. अरे बच्चों जल्दी बच्चे, राशि क्या ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है बच्चे? देखो जरा क्विकली. सावी, Yes, sir. are you comfortable with this? सावी, सना क्लियर है बच्चे? इतना बात है. Clear, sir. ओके बच्चे, नो डाउट्स बच्चे? ओके चलो लेट्स सी बच्चे. अब लेट मी कोट यू पीपल. तो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक. लेट मी पिक सम second characteristic of adsorbate. Characteristic number 2. अरे बच्चे, मैं ना बच्चे कैमरा स्विच ऑन करूं तो मैं जरा देखो. Hey students, are you able to see this pack of medicines with me? देख पा रहे हो? नजर आ रही है बच्चे पैक ऑफ मेडिसिन टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जी बच्चे. नाउ इसमें दिस इज पैक ऑफ 10 मेडिसिन. ठीक है. तो इसमें से 6 मेडिसिन पिल्स आर राइट एट देयर प्लेस, 4 पिल्स हैव बीन टेकन आउट. तो उनकी जगह ये वेकेंट स्पेसेस क्रिएट होगी. देख पा रहे हो? डू यू सी दीज वेकेंट स्पेसेस बच्चों? ऑल ऑफ यू देख पा रहे हो? तो दिस इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ adsorbate. So in second category, adsorbents have such kind of surfaces where there are lots so many dips on their surfaces. So if any foreign molecule comes and collide, it will get entrapped into these dips. So that is a second way of generating of coding a thing as an adsorbent. तो adsorbent को हम दो मैकेनिज्म से पिक कर सकते हैं. या तो उसके सरफेस पे ऐसे डिप्स हो, या फिर उसके सरफेस की वैलेंसेस वेकेंट हो. देयर इज नो थर्ड वे ऑफ पिकिंग इट अप एज एन adsorbent. Ariuchi, this is what I'm going to write in words. Are you clear about it? And such kind of dips are been found on surface of every transition metal compound. So that way transition metal and their compounds are the perfect catalyst ever been known. हाँ जी दलजीत, क्या चीज़ क्लियर है बच्चे? Yes, sir. स्टार्ट करें. तो दैट्स द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बच्चे. देखिए बच्चे, हरी लेट्स हरी बच्चे. सो adsorbate may be identified as substance which has free vacant spaces on their surface. तो एक तो बच्चे हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया और एक मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया. नाउ लेट मी कोट बच्चे वन एग्जांपल. चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली और आसान हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल बच्चे, चारकोल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. अब मान लीजिए बच्चे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ चारकोल.
And this is molecule carbon monoxide. It comes and stays on surface of charcoal only. ये इसके surface पे जो stay करेगा will not penetrate deep into its structure. तो यहां मैं मुझे चारकोल को नेम कर रहा हूं adsorbate and carbon monoxide is called as a adsorbent. जल्दी बच्चे, आर यू क्लियर अबाउट दिस टर्म बच्चे adsorbate and adsorbent? तो नॉर्मली बच्चे अब हम adsorbent क्या डिफाइन करते हैं? A substance whose concentration takes a decision whether possesses adsorption or absorption. अगर adsorbent की concentration high है on surface, less in a bulk, it will be adsorption. लेकिन अगर adsorbent की concentration high है in bulk and less on surface, it will be called as a absorption. जल्दी बच्चे फटाफट यहाँ तक बच्चे एक क्विक रिव्यू चेक करो, देखो इज इट क्लियर या कुछ डाउट्स है बच्चे वुड लाइक टू डिस्कस, देन लेट्स मूव फर्दर बच्चे. अच्छा बच्चे एक काम करना, प्रेजेंटली ये पीडीएफ फाइल मैं आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा, तो हैव अ टोटल फोकस ऑन गेटिंग दीज थिंग्स. तो लिखने पे ज़्यादा ध्यान मत रखना, ये मैं आपसे पीडीएफ फाइल शेयर कर लूँगा. जल्दी बच्चे देखो, राशि कुछ कन्फ्यूजन है बच्चे यहाँ तक, आगे चले या फिर? Yes, sir. क्लियर. सना, दिलजीत जल्दी बच्चे, साबी जल्दी बच्चे देखो ज़रा, दिव्या, यशिता Excuse me, sir. प्लीज़ बच्चे बोलो बेटा. So, since carbon monoxide is getting adsorbed onto the surface of charcoal, wouldn't we call carbon monoxide adsorbate? नहीं बच्चे, adsorbent is a substance. Adsorbent is a sub. I'm so sorry. I'm so sorry बच्चे. सना, I'm so sorry बच्चे. So sorry बच्चे. Charcoal is बच्चे adsorbent and carbon monoxide will be called as a adsorbent. Absolutely बच्चे. Absolutely बच्चे. ये बच्चे करेक्शन कर लेना. हाँ जी बच्चे. सना, इट्स ओके बच्चे. चलिए आगे. Yes, sir. हाँ जी बच्चे. अब एक ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पे पिक करो. There is a container which contains some gas at pressure 5 atmospheres. Initially at T equals 0. And after 10 minutes, some adsorbate is added. Some adsorbent is added in vessel. What will happen to final pressure? Will it remain 5 atmospheres, or it will decrease, or it will increase? जल्दी बच्चे. Increase. It will increase. Okay. दिलजीत आपको क्या लगता है बच्चे? हाँ जी बच्चे. Sir, I'm thinking so. ओके. बच्चे एक बार दोबारा से देख लो. मेरे पास एक वेसल में गैस थी कार्बन मोनोऑक्साइड एट अ प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर. ठीक है, मैंने उस वेसल में चारकोल एडअप कर दिया. तो चारकोल एडअप करने के बाद व्हाट विल हैपन टू प्रेशर? विल इट रिमेन सेम 5 एटमॉस्फेयर? विल इट डिक्रीज और इट विल इंक्रीज? सना सेज इट विल इंक्रीज. व्हाट डू यू से बच्चे? Decrease. इट विल डिक्रीज. ओके. राशि आपका आंसर बच्चे? सर हमें किसका प्रेशर बताना है? प्रेशर गैस का बच्चे. चारकोल तो सॉलिड है बच्चे, वो तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा नहीं. So I think decrease. Absolutely बच्चे. सना, you need to make a correction बच्चे. This is pressure 5 Yes, sir. atmosphere pertaining to carbon monoxide only. जैसे आप चारकोल एडअप करोगे, certain amount of carbon monoxide will be adsorbed on surface of charcoal. तो as molecules of carbon monoxide will get entrapped onto the surface, तो amount of carbon monoxide will decrease बच्चे. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बच्चे कम हो जाएगा. जी बच्चे देखिए, क्लियर है बच्चे? सना, इज इट ओके? Clear, sir. जी बच्चे. लक्ष्य कुछ आपका डाउट बच्चे यहाँ तक? क्या आगे चले? Clear, sir. जी बच्चे. चलो
लेट्स मूव फर्दर बच्चे, अब हम यहां से चलते हैं आगे. अ फिनोमेना कम्स बाय नेम एज extent of adsorption. Extent of adsorption. हरी बच्चे, ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है. इट इज कैलकुलेटेड एज x by m. What is x? Mass of adsorbate, that gas carbon monoxide we had been talking about, and m is mass of adsorbent, that is charcoal. तो जब ये आप एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करोगे ना, इट विल बी कैलकुलेटेड एज x डिवाइडेड बाय m. हरी बच्चे, अब यहाँ पे पिक करते हैं टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शंस. टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मुझे प्राइमरली दो टाइप्स में नोन है. वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन. फिजिकल एब्जॉर्प्शन. And second is by name as chemical adsorption. Physical and chemical adsorption. Now, what is physical adsorption? बच्चे, ये क्या होता है बच्चे? What is physical and chemical? जब ये बच्चा चैप्टर सीबीएसई में इवेल्युएटिव था ना, एनसीईआरटी में, तो दिस यूज टू बी ट्रमेंडसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉइंट्स एंड डिफरेंसेस. जैसे आपको 11th में ऑर्बिट ऑर्बिटल मिलता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी मिलता है, तो इट यूज टू बी दैट मच इंपॉर्टेंट. बट नाउ तो आपके पॉइंट्स लिखने उतने जरूरी नहीं है बच्चे, तो इसको समझो. लेट्स कम टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अरे बच्चे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन बच्चे, जो भी एब्जॉर्बेट होगा एंड एब्जॉर्बेंट, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे ना, दे विल बी प्रेटी वीक इंटरेक्शंस. इट मे बी वैन डर वाल फोर्स, very weak polar attractions. It will be extremely weak. And what will be chemical adsorption? तो जो भी adsorbate है बच्चे और जो भी adsorbent है, इन दोनों के बीच में जो interaction है very strong. There may be hydrogen bond, there may be chemical bond, there may be strong polar attractions, etc. तो दैट बच्चे, ये आता है इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट विल बी वेरी वीकली इंटरैक्टेड विद ईच अदर, एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन दे विल बी वेरी 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 स्ट्रांगली इंटरैक्टेड विद ईच अदर. अरे बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन बच्चे चेक करो. एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, they are going reversibly as per nature of chemical reaction which मैं बात करूं. in one case they are going irreversibly. अगर एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट का इंटरैक्शन रिवर्सिबल है या एक केस में इरिवर्सिबल है, इनमें से एक केस है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक केस है केमिकल एड्सॉर्प्शन. कैन यू पिक एंड चूज what will be case of physical adsorption, what will be case of chemical adsorption? One adsorption is reversible, one is irreversible. Means एक बार molecule adsorb हो गया, वो easily remove नहीं हो पाएगा, that is irreversible. Molecule adsorb हो गया, उससे बहुत easily detach कर सकते हो, that is reversible. जी बच्चों, दिलजीत जल्दी फटाफट, क्या लगता है? So reversible is a physical and a permanent is a chemical. Okay, बच्चे. Sana, are you convinced? Yeah, you have different opinion. So same answer. सेम. राशि, लक्ष्य, जल्दी बच्चे चेक करो. Same. जी बच्चे, एब्सोल्युटली. तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना बच्चे, दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज केमिकल एड्सॉर्प्शन.
अच्छा बच्चे, वंस अगेन अब हम इसमें एक और करेक्टरिस्टिक कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं. अब मान लीजिए दिस इज सम सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट, ठीक है, और उसके सरफेस पे ये है वेकेंट स्पेस. Adsorbent 1 and this is adsorbent 2. It's a second case. फर्स्ट केस में बच्चे मेरे पास जो adsorbent मॉलिक्यूल्स है ना वो ये हैं बच्चे. इन सेकेंड केस में this is size of vacant space and this is almost size of adsorbate. हरी बच्चे, experiment number 1 and experiment number 2. हरी बच्चे, किस केस में एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल वेकेंट स्पेस में टाइटली हेल्ड अप होगा? इज इट नंबर Number 2. 1 या नंबर 2 बच्चे? जी सना, व्हाट डू यू से बच्चे? So number 2. एब्सोल्युटली बच्चे. डू यू सी बच्चे इन फर्स्ट केस जो साइज है कैविटी का और जो है साइज एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. देख पा रहे हो? तो अगर ये मॉलिक्यूल यहां पर बीच में आएगा तो इट विल बी वेरी लूजली हेल्ड अप. इट विल बी एक्सट्रीमली लूजली हेल्ड अप. तो इट विल बी, देयर विल बी हाई चांस दैट इट मे एस्केप आउट, जिसे मैंने रिवर्सिबल का नाम दिया बच्चे. एंड इन दिस केस इफ यू सी, जैसे मॉलिक्यूल आके बच्चे एंट्रैप होगा इस कैविटी में, जैसे इस कैविटी में आके बच्चे एंट्रैप होगा तो ऑलमोस्ट उसने पूरी स्पेस फिल कर ली. तो इट इज ऑलमोस्ट टाइटली फिटेड. तो इस मॉलिक्यूल के यहां से एस्केप होना कंपैरेटिवली मुश्किल होता जाएगा बच्चे. तो दैट बच्चे विच इज, सो अब मैं दोनों को यहां से बच्चे रिलेट कर रहा हूं. विच सीम्स टू बी मोर स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन? विच इज मोर स्पेसिफिक बच्चे, फिजिकल या केमिकल एड्सॉर्प्शन? Chemical. केमिकल, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल और एड्सॉर्बेंट साइट का साइज ऑलमोस्ट मैच करेगा. तो एक स्पेसिफिक साइज का मॉलिक्यूल ही उसमें फिक्स हो पाएगा, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स. एंड फिजिकल तो इट विल बी एग्जैक्टली मॉलिक्यूल जो भी फिट होगा इट विल बी वेरी वीकली हेल्ड अप. तो बीइंग वीकली हेल्ड अप इट विल बी वेरी इजीली डिस्प्लेस्ड ऑफ फ्रॉम दैट कैविटी. तो दैट वे बच्चे physical is absolutely non-specific and chemical will be specific, right? Third बच्चे, third comparison right here. अरे बच्चों, when adsorbate comes in contact with adsorbent, right? अरे बच्चों, what will happen to enthalpy? Will enthalpy be negative, heat is released, or enthalpy will be positive, heat is absorbed? क्या होगा बच्चे? Whenever adsorbate comes in contact with adsorbent, physical चाहे chemical बच्चे, तो what will happen to heat? It will be absorbed or released? Released. Absolutely बच्चे, क्योंकि do you see बच्चे दोनों ही केसेस में intermolecular forces बन रहे हैं. एक केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर बन रहे हैं, एक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं. तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के बनने के कारण हीट इज बाउंड टू बी रिलीज्ड. राशि कन्विंस्ड? Yes, sir. तो दिस विल हैव स्मॉल डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू, दिस विल हैव लार्ज डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू. जल्दी बच्चे यहाँ तक का एक फटाफट रिव्यू चेक करो, फिर हम लोग आगे चलें यहाँ से. लक्ष्य जल्दी देखो बच्चे, कुछ कंफ्यूजन इस चीज में यहाँ तक? नो सर. क्लियर है. सना कुछ डाउट? खैर आपके आंसर ठीक ही आ रहे बच्चे. दिलजीत कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? नो सर. ओके बच्चे, ओके बेटा.
अब मैं यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ. लेट्स सी अ क्वेश्चन. ठीक है. A beaker contain 100 milliliter of 0.5 molar acetic acid aqueous solution. Full stop. On addition of 4 grams charcoal, on addition of 4 grams charcoal, copper, molarity of acetic acid remained 0.49. Full stop. How many molecules? बच्चे ध्यान से देखो, क्या इस स्टेटमेंट में यहाँ तक के स्टेटमेंट को देखकर आपको एसिटिक एसिड का अमाउंट कम होता नजर आ रहा है बच्चे? क्योंकि मैंने मोलारिटी में डिक्रीज शो की है, एड्सॉर्प्शन के कारण एसिटिक एसिड का अमाउंट कम होता नजर आ रहा है बच्चों. Yes, sir. है बच्चे. तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम चारकोल? जल्दी बच्चे, फटाफट, 1 minute टाइम, क्विक. Yes, sir. Millimoles of acetic acid initially बच्चे, they were 50, and millimoles of acetic acid finally 49. So millimoles of acetic acid adsorbed, that will be 1. So molecules of acetic acid adsorbed, that is 1 by 1000. So many moles into Avogadro's number, that will be 6.02 into 10 to the power 20. Mass of charcoal used 4 grams. So that will be 4 grams charcoal adsorbed 6.02 into 10 to the power 20 molecules. So 1 gram charcoal बचे adsorbed how many molecules? By 4, तो approximately 1.5. So many molecules adsorbed per gram of charcoal. दिलजीत जल्दी देखो बच्चे, क्लियर है कि डाउट है? यस सर, मैंने बस मोल्स में निकाले था, मोल्स को मैंने मॉलिक्यूल्स में नहीं करा क्लियर कन्वर्ट. बच्चे, आगे चले. यस चलो सर. बच्चों, let's come to a very 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 important part of adsorptions. देखिए बच्चे, characteristics of adsorption. अरे बच्चे, number 1, अरे बेटा, one is gas X, other is gas Y. This gets liquefied easily, and this gets liquefied with difficulty. जल्दी बच्चे, which gas will be able to interact more strongly with a common adsorbent? Gas X. Gas X बच्चे. Okay, Rashi, what about you beta? So I think by Y. Okay, Diljit, both wonderful students picked one option each. What's your review बच्चे? दिलजीत ये सोच के चलना बच्चे, सर आई थिंक एक्स. वो सोच के चलना बच्चे, गैस को एड्सॉर्ब होने के लिए
एड्जॉर्बेंट के साथ इंटरेक्ट होना है। राशि, सना, राइट बच्चे, कीप दैट फैक्ट इन माइंड। तो एक बार अपने आंसर दोबारा से रिव्यू करिए। सना, हो सकता है आपका आंसर वाई हो जाए बच्चे। राशि, हो सकता है आपका आंसर एक्स हो जाए। Sir, I think it's आई थिंक X. एक्स। जी बच्चे। राशि, डू यू एग्री बोथ ऑफ देम सेज एक्स कि यू विल स्टिल स्टिक विद वाई? So I'm not sure, but I still think it's Y. बच्चे आंसर इज एक्स। सना, परफेक्ट बच्चे। क्योंकि गैस बच्चे एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट होना है, तो वो गैस स्ट्रांगली इंटरैक्ट होगी जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, राइट। और जब आप गैस को लिक्विफाई करते हो, यू आर चेंजिंग गैस टू लिक्विड। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करने हैं। तो जो गैस इजिली लिक्विड में चेंज हो रही है, बिकॉज इट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस वर वेरी स्ट्रांग। आपने थोड़ी सी कंडीशन बोल्स की, दैट गॉट लिक्विफाइड। His guess Y was difficult to liquefy. Why? Its intermolecular forces were not that strong. So we had to do lot of work to liquefy that gas. हरी बच्चे, राशि, गॉट इट, क्लियर है? चले, Yes, sir. मैं यहाँ पे कुछ नॉर्मली गेट अप कर रहा हूँ। A gas which is easily liquefied show more extent of absorption. Or extent of absorption of gas is directly proportional to critical temperature. Number 2 बच्चे, let's come to effect of temperature. Effect of temperature, this is basically isobar, means this is effect to be studied at constant pressure. आपसे टेम्परेचर चेंज कर रहे हो बच्चे, हरी बच्चे। Extent of absorption, increase in temperature, extent of absorption, increase in temperature, right बच्चे, हरी बेटा। अब चेक करो बच्चे, adsorbate your gas plus adsorbent, this is surface, this is equals to adsorption, right। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे स्टे कर पाना इजी होता जाएगा कि मुश्किल होता जाएगा बच्चे? Increasing temperature, what increase in temperature will do? Will provide additional amount of thermal energy. तो यूजिंग द थर्मल एनर्जी, तो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होना इजी होता जाएगा या मुश्किल होता जाएगा बच्चे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? मुश्किल। बच्चे एब्सोल्युटली। दिलजीत, कन्विंस्ड? Yes, sir. क्योंकि एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करेगा, तभी तो उसके सरफेस पे स्टे करेगा। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, मैं उस सिस्टम को और ज़्यादा अमाउंट में थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता जाऊंगा। प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, तो दोज अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी इजीली ब्रोकन अपार्ट। तो इसलिए मॉलिक्यूल का स्टे कर पाना मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए एड्सॉर्प्शन ग्राफ फॉलो किया ये बच्चे, it decreases. But the moment we come to one other type of absorption, ये दो ग्राफ्स हैं बच्चे मेरे पास, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी। इनमें से एक है बच्चे ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड अदर्स अ ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू केमिकल एब्जॉर्प्शन। The first graph is for physical adsorption, physiosorption.
And second is for chemical adsorption, chemisorption. दिस इज क्वाइट कन्विंसिंग. टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा. बिल्कुल ठीक है. केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी एक स्टेज पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट कम होता जा रहा है. बट इनिशियल स्टेज पे बढ़ा क्यों? When it used to be in NCERT curriculum, this used to be one amongst most important reason-based question. Most important reason-based question, full physical chemistry class 12th. जी बच्चे, जल्दी फटाफट सोच सकते हो कि डिस्कस करें बच्चे. Sir, प्लीज बच्चे बोलिए. sir, due to the initial increase in temperature, it favored the interaction between the absorbent and the फुल मार्क्स टू यू, फुल absorbed. मार्क्स टू यू बच्चे. Yes. तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज करके बच्चे कोट कर रहा हूँ. केमिकल एड्जॉर्प्शन को बच्चे आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के थ्रू चलना होगा. ठीक है. कोई भी केमिकल प्रोसेस इट विल गो एज पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. तो इनिशियली जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इट विल हेल्प रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अटेन रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. एक बार एड्जॉर्प्शन शुरू हो गई, उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, देन देयर आफ्टर इट विल गो एज पर इक्विलिब्रियम सिचुएशंस. तो यहां तक का जो टेम्परेचर है ना बच्चे, यहां से लेके यहां तक, लेट मी कोट T1 अप टू T1 थर्मल एनर्जी is used in forming, in attaining required activation energy. तो यहां पे बच्चे इक्विलिब्रियम आ गया. उसके बाद जैसा टेम्परेचर बढ़ाओगे ली चार्टेस प्रिंसिपल. अरे बच्चे, स्टूडेंट्स आर यू कन्विंस बच्चे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट विल बी रिलीज्ड. कन्विंस्ड है आप लोग? जल्दी देखो बच्चे. सना, आर यू कन्विंस्ड बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Once equilibrium is attained, at equilibrium बच्चे आपने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिकॉल करिए बच्चे अपना ली चार्टेस प्रिंसिपल. तो once temperatures increase at equilibrium, endothermic reaction will be favored. So which will be endothermic reaction? That endothermic reaction will be your backward reaction. So this backward reaction will be favored. So what will happen? Adsorption जो हुआ था तो molecules will be set free. वो de-adsorption में conversion शुरू हो जाएगा. तो extent of adsorption will start decreasing. So this is increase in temperature is shifting direction in backward direction, and this increase in temperature is helping to attain required threshold energy. सना जल्दी बच्चे ठीक से नोट करो. राशि जल्दी क्विकली. लक्ष्य क्विकली बच्चे. इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये सरफेस केमिस्ट्री का बच्चे. लक्ष्य कुछ कंफ्यूजन है बच्चे? देखो जरा जल्दी. No, sir. राशि क्लियर है बच्चे? दिव्या? Yes, sir. Yes, sir. जी. सना क्लियर हो गया बच्चे? Yes. Yes. यशिका कोई कंफ्यूजन बच्चे? यशिका नैयर? अब इसको बच्चे मैंने कोट किया है आइसोबार. व्हाई? इट इज गोइंग ऑन एट कांस्टेंट प्रेशर. अब आता है बच्चे इसका नेक्स्ट नंबर 3 पार्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. दिस इज आइसोथर्म, राइट? मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अरे बच्चे वॉच के बच्चे, अब यहां पे बच्चे दिस इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अरे बच्चे, अब मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक कंटेनर में ये मेरे पास एड्सॉर्बेंट, राइट? दिस इज एड्सॉर्बेंट.
और इस एड्जॉर्बेंट में सरफेस पे ये सारी कैविटीज है खाली. These are empty cavities, empty spaces. This is ये पूरी खाली है बच्चे. And so on. At t equals to 0 बच्चे. और ये है मेरे पास some gas molecule. Adsorb it. हाई बच्चे. At initial stage बच्चे, जैसे मैं गैस मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करूंगा टुवर्ड्स डाउन साइड, उसमें फोर्सिबली एड्जॉर्बेंट की तरफ डायरेक्ट करूंगा, तो एट वेरी इनिशियल स्टेज हाउ मच विल बी चांस ऑफ मॉलिक्यूल गेटिंग एंट्रैप्ड इनटू दीज कैविटीज? एक्सट्रीमली हाई, ये एक्सट्रीमली लो. सारी कैविटीज खाली है मुझे. Very high. एक्सट्रीमली हाई बच्चे, एक्सट्रीमली हाई. इसे थोड़ा सा बच्चे एक इवेंट से रिलेट करके देखो. समटाइम्स इन फेयर यू फाइंड सम बलून्स, स्मॉल बलून्स टू बी हिट और pricked by some gun. देखो बहुत जगह लगा होता है बच्चे, मेला लगा होता है, देखे. एंड इमेजिन दैट स्टेट, दैट शीट इज कंप्लीटली फिल्ड विद स्मॉल बलून्स. तो आप जैसे भी मर्जी गन से एम करिए, कोई ना कोई गुब्बारा तो स्प्रिक हो ही जाएगा बच्चे. 10 में से 2 4 5 तो हो ही जाते हैं. जब वो बलून कम हो गए, 2 4 रह जाते हैं, फिर पता चलता है कि आपका एम कितना अच्छा है. क्यों दलजीत सिंह, कभी नोटिस किया है मेले में? मेरा इंतजार हमेशा अरे हाउ यू. So that way बच्चे, Sana, you're absolutely right बच्चे. At initial stage there will be very high probability of molecules getting entrapped into these cavities. Very high probability. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता गया, तो these molecules they got entrapped. अब मान लीजिए बच्चे टोटल कैविटीज थी say 100 and cavities entrapped say 42, और यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम. राइट, इक्विलिब्रियम आ गया बच्चे. तो इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है बच्चे, वो कितनी कैविटीज के प्रोपोर्शनल होगा? 42 कैविटीज या 58 कैविटीज? टोटल 100 कैविटीज थी बच्चे, जिनमें से 42 कैविटीज ऑक्यूपाइड हो गई है. तो उस मोमेंट पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस नंबर ऑफ कैविटीज के प्रोपोर्शनल होगा? जो फिल्ड है उनमें मॉलिक्यूल जाएगा, या जो खाली है उनमें मॉलिक्यूल जाएगा बच्चे? जल्दी 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 बच्चों, फटाफट. जी सना, क्या लगता है बच्चे? डू यू वांट मी टू रिपीट? Sir, just once again. प्लीज, आई एम डूइंग इट बच्चे. मान लीजिए दे आर टोटल 100 कैविटीज इनिशियली, ठीक है, एट इन द बिगनिंग, and with adsorption progressing on, among 100 cavities 42 cavities have been occupied by adsorbate molecules. तो इस स्टेज पे 42 cavities occupied है, 58 cavities vacant है. इस मोमेंट पे मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? उन कैविटीज पे जो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, या वो कैविटीज जो उस टाइम पे वेकेंट अवेलेबल है? Sir, I'm not sure, but I think 42. You think 42? Okay, Diljit, what about you, bache? Sir, I think the ones which are vacant. Okay, Lakshya, what about you, bache? Vacant. Vacant. Rashi? So vacant. Absolutely, bache, undisputedly. It will be vacant. सर ना, जिस कैविटी में ऑलरेडी मॉलिक्यूल आ गया, तो उसमें जगह कहाँ होगी मॉलिक्यूल की ओर जाने की? सर बट रेट के हिसाब से देखे जाएं तो इन अंटिल इक्विलिब्रियम 42 तो एड्सॉर्प्शन क्या समझ आए बच्चे? इट इज अ प्रोसेस व्हिच मॉलिक्यूल गेट्स एंट्रैप्ड. तो जिस कैविटी में ऑलरेडी मॉलिक्यूल, सर आई अंडरस्टूड दैट प्रोसेस. तो अगर मॉलिक्यूल ऑलरेडी एंट्रैप हो चुका है, तो दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? उसमें स्पेस ही नहीं होगी उसमें. So initially बच्चे, Yes, sir. rate of adsorption will be proportional to number of free cavities at initially. जैसे टाइम बढ़ता जाएगा,
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होता जाएगा बच्चे, और एक स्टेज इक्विलिब्रियम आएगी बच्चे, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डी एब्जॉर्प्शन दे विल बी इक्वल. तो व्हाट विल बी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस? मॉलिक्यूल्स का वेकेंट कैविटीज में एंट्रैप होना, एंड व्हाट विल बी डी एब्जॉर्प्शन? ऑक्यूपाइड कैविटीज में से मॉलिक्यूल का रिलीज होना. तो इसके हिसाब से बच्चे, तो ये बच्चे ध्यान से इसको देखना, क्योंकि ये आपके बुक्स में गिवन नहीं है बच्चे एज सच, सिर्फ ये ग्राफ गिवन है बच्चे, और बहुत अजीब सा ग्राफ है बच्चे. एंड आई वुड से इट इज द ओनली चैप्टर जिसमें हम ग्राफ से इक्वेशन बनाते हैं बच्चे. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 zones: लो प्रेशर, moderate pressure and high pressure. At very initial stage, extent of absorption increases linearly. At moderate, increases slightly sluggish. And at extremely high pressure, it is almost independent. अरे बच्चों, जो ग्रीन फेज है बच्चों, जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऑलमोस्ट डिपेंड ही नहीं कर रहा. दिलजीत देख पा रहे हो बच्चे विद अ ग्रीन इंक? Yes, sir. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द टू पॉसिबल रीजंस. हो सकता है वहां पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो गई हो, राशि, राइट? Yes, sir. हो सकता है बच्चे ऑल कैविटीज हैव बीन ऑक्यूपाइड, देयर इज नो कैविटी जिसमें मॉलिक्यूल ट्रैप हो सके. आपने सरफेस की सारी कैविटीज यूज कर ली, आपने सरफेस की सारी फ्री वैलेंसीज यूज कर ली, तो देयर इज नो मोर अवेलेबल कैविटी एज वेल एज अ फ्री वैलेंसी, तो दैट इट इज गेटिंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अबाउट इट. ये है बच्चे पूरे सिलेबस का ग्राफ टू बी मार्क्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1. अब मैं इन तीनों ग्राफ्स के हिसाब से बच्चे इसकी इक्वेशंस बना रहा हूं. सी, एट लो प्रेशर दिस इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट तब आती है बच्चे व्हेन पैरामीटर्स प्लॉटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पार्ट. जी बच्चे, लक्ष्य क्लियर बच्चे? Yes, sir. At Yes, high sir. pressure बच्चे, it is completely independent of pressure. Any number raised to power 0 will be 1. Right? तो at moderate pressure, तो it is slightly curve. तो that way बच्चे इसे हम एक फ्रैक्शन टर्म से डिनोट कर देते हैं, फिर n is Freundlich constant. The value of n ranges from 1 to infinity. Do you see बच्चे when n will be 1, it will reflect effect at low pressure? देखो जरा दिलजीत, राइट बच्चे? When n will be taken 1, so effect at low pressure will be observed. Yes, sir. When Yes, n sir. will be extremely high, it will be effect at high pressure, independent. So this is most general equation of adsorption isothermy. जल्दी बच्चे यहाँ तक इंफॉर्मेशन रिकैपिचुलेट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं. मुझे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मुझे. अरे बेटा, अब हम आते हैं यहाँ से लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. सो मैं यहाँ बच्चे इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, x by m equals some constant proportionality into p raised to power 1 by n, where k is constant, does not have any specific value. मैं इसे बच्चे log में कन्वर्ट करूँ, log x by m equals log k plus 1 by n into log p. तो जैसा भी बच्चे प्लॉट करोगे, log x by m
against log P. Do you people realize? Raised to power 1, raised to power 1, graph will be straight line. This will represent its slope and this will be intercept. अक्षय ठीक है बच्चे? Yes, sir. पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप ये बनेगा बच्चे हमारा ग्राफ. जल्दी बच्चे नोट कर लो. और यहां से एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाईली एक्सपेक्टेड होता है बच्चे. स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में ना बच्चे सी एक मिनट से ध्यान से देखो. ही माइट बी आस्किंग यू अमाउंट ऑफ एक्स या अमाउंट ऑफ एम या एक्स बाय एम. उसके लिए आपको कांस्टेंट के और कांस्टेंट एन की जरूरत पड़ेगी. तो वहां पर आपको उसके वो लॉगरिथमिक फॉर्म के ग्राफिकल डाटा प्रोवाइड करेंगे मुझे. तो आप इंटरसेप्ट से बच्चे आप इसका के निकाल लो, स्लोप से आप एन की वैल्यू निकाल लो एंड यू कैन पुट इट बैक इन योर इक्वेशंस. आंसर आ जाएगा मुझे. दिलजीत मैनेजेबल? राशि मैनेजेबल? Yes, sir. Sure? Yes, sir. All of you clear about it? चलो, let's see बच्चे that question. Just a minute बच्चे. Hi students. यहाँ पे बच्चे sheet में I had put a few questions as per graph. जल्दी बच्चे have a look. Question number 4 जल्दी. जल्दी बच्चे question number 4. अगर आप log x by n को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट log p, k n 1 by n दोनों स्लोप्स में आएंगी, 1 by n इंटरसेप्ट में आएगी, 1 by n स्लोप में आएगी, log 1 by n इंटरसेप्ट में आएगी. विच विल बी करेक्ट आंसर? Option C. एब्सोल्युटली. राशि, दिलजीत, लक्ष्य जल्दी बच्चों देखो क्लियर है? राशि जल्दी Yes, बच्चे. sir. Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है बच्चे? दिलजीत सिंह Yes, sir. ओके. जल्दी बच्चे स्टूडेंट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 6. यहां पर बच्चे आपको कोट करना है x by m is proportional to p raised to power x. So what will be this term p raised to power x? Option D. Absolutely correct बच्चे. Student, do you see बच्चे altitude by base? This will be value of tan. Tan theta will be 2 by 3. Students देख पा रहे हो? And that tan theta is slope of line. The slope is 2 by 3 और slope होती है बच्चे हमारे पास 1 by n. That is 2 by 3. जल्दी बच्चों फटाफट जल्दी देखो बच्चे. सर बच्चे ये 2 by 3 आएगा बच्चे. ऑप्शन में सी पार्ट, डी नहीं बच्चे. Yes, sir. I just noticed. तो विल बी क्योंकि x by m equals k into p raised to power 1 by n. तो 1 by n वैल्यू is 2 by 3 बच्चे. दिलजीत क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. और बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने डाले थे इसके. हरी बच्चों और जल्दी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे सब्जेक्टिव. The mass of gas adsorbed x per unit mass of adsorbed m was measured at various pressures. A graph between log x by log p gives a straight with a slope equals to 2 and intercept equals to 0.4771. तो आपको वैल्यू ऑफ x by m कैलकुलेट करनी है at a pressure 4 atmospheres. जल्दी बच्चे फटाफट. So plan up is clear to all of you बच्चे. तो मुझे x by m कैलकुलेट करना था. I know pressure.
मुझे कांस्टेंट के एंड 1/n कैलकुलेट करना है, तो मैंने कांस्टेंट के एंड 1/n ग्राफिकल लेबलिंग से इवेल्युएट कर लिया, राइट। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट बच्चे। अरे बच्चे स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का बच्चे फर्स्ट पार्ट बाय नेम एज एडसॉर्प्शन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बच्चे। पहले मैं बच्चे पिक करूँगा कोलाइड्स, फिर पिक करूँगा आपके कैटलिस्ट। लेट्स कम टू कोलाइड्स। अरे बच्चे अब जो कोलाइड्स हैं बच्चे, व्हाट आर बेसिकली कोलाइड्स, इन्हें हम किस वेज में इनके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। आपने बच्चे कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 को आपने किया मिक्स, वी गॉट सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन बना, दिस सॉल्यूशन इट मे बी अ ट्रू सॉल्यूशन, it may be colloid, it may be suspension। हरी बच्चों क्लियर है बच्चे, जैसे हम कुछ कंपोनेंट्स मिक्स करते हो, आपके पास जो सॉल्यूशन बना, दैट सॉल्यूशन मे बी अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन मे बी अ colloid, दैट सॉल्यूशन मे बी अ सस्पेंशन। तीनों में फर्क क्या है बच्चे, merely पार्टिकल साइज। तो जो कोलाइड्स हैं देयर पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम, ये इसकी सबसे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बच्चे ध्यान रखना, साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 to 1000 nanometers। And what will be size of two solution particles? Less than 1 nanometers। And what will be size of suspensions? More than 1000 nanometers। तो कोलाइड इज अ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। बच्चे जल्दी से बच्चे कोलाइड्स में ये पार्टिकल साइज मेंशन करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया बच्चे आप लोगों ने। अब यहां पे ना बच्चे मैं कोलाइड्स को आपको ट्रू सॉल्यूशन के पैरेलल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सी आई टुक सल्फर solid and I took CS2 liquid, it forms true solution। सल्फर को जब क्या लेबल करोगे और कार्बन डाइसल्फाइड को क्या लेबल करोगे, व्हाट विल बी नेम गिवन टू देम, व्हिच विल बी सॉल्यूट, व्हिच विल बी सॉल्वेंट। आप क्या सॉल्यूट लेबल करोगे, व्हाट विल बी सॉल्वेंट, Sulfur is solute। and carbon disulfide will be solvent। राशि क्लियर बच्चे? Yes, sir। Sulfur is completely soluble in carbon disulfide like NaCl is soluble in water। अब अगर मैं यही सल्फर बच्चे वाटर में एडअप कर दूँ ना, it doesn't dissolve well, it forms colloidal solution। तो जो बच्चे मेरा ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट था, कोलाइड में मैं उसे कहता हूं डिस्पोज्ड फेज। और जो मेरा ट्रू सॉल्यूशन सॉल्वेंट है कोलाइड्स में, इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। तो दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स, एक है बच्चे डिस्पोज्ड फेस और एक है डिस्पर्शन मीडियम। जल्दी बच्चे यहां तक की इंफॉर्मेशन को जरा चेक करो, हम लोग आगे चलते हैं। अब डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से ना आप कुछ कोलाइड्स को बच्चे क्लासिफाई करते हो। एक आता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड्स, and another is lyophobic collide।
So same thing, Gucci. When this chapter used to be in NCRT, this used to be another tremendously important comparison-based question. Right? हाँ जी बच्चे, क्या आप इस वर्ड फिलिक को फाइल से एंड फोबिक से रिलेट कर पा रहे हो बच्चे? What phobic and philic stands for? Repulsive. And this is attractive. Can I use these words? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे आप लोगों को? Sana, comfortable बच्चे with these words? Phile and phobic? Yes, sir. Particles of disposed phase have attraction for dispersion medium. And right here, no attraction between particles of disposed phase and dispersion medium. जल्दी बच्चे, तो क्या आप ये डेफिनेशन को बच्चे इन रिपल्शन और अट्रैक्शन से रिलेट कर पा रहे हो बच्चे? ना राइट है बच्चे. Thermodynamically, which will be more stable? Lyophilic. Correct बच्चे. Lyophilic colloid is more stable than lyophobic colloid. अब यहाँ पे बच्चे एक तो बच्चे मेरा नोट चाहिए और एक मैं नोट यहाँ पे बच्चे एडप्ट कर रहा हूँ. If dispersion medium is water, comma, hydrophilic colloid will be most stable among all. Tremendous polarity, tremendous value of dielectric constant, highly stabilizing nature. तो बच्चे ये दो नोट यहाँ पे एडअप कर लो बच्चे, जल्दी ऐड कर लीजिए, फिर लोग आगे चलते हैं बच्चे. हरी बच्चों, चले आगे, नोट कर लिए बच्चे आप लोगों ने इतना. अब हम देखते हैं बच्चे इनकी यहाँ पे preparation of colloids. Primarily बच्चे दो important methods हैं colloids की preparation को लेकर. One is by name as a peptidization. तो इस चैप्टर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस पेप्टाइजेशन में ही कवर अप हो जाता है बच्चे. पेप्टाइजेशन and second is Burdick's arc method. बहुत इजी गोइंग मेथड है बच्चे, कोई ज़्यादा वो नहीं है बच्चे. हरी बेटा, अब जब हम बच्चे कोलाइड्स बनाते हैं ना, एक बार यहाँ पे चेक करो, अगर मुझे कोलाइड बनानी है तो देयर आर टू टेक्निक्स विच आर अवेलेबल. One of our technique is aggregating and other technique is segregating. तो समझ पा रहे हो बच्चे, एग्रीगेशन से कैसे होगा और सेग्रीगेशन से कैसे होगा? सना, getting this thing बच्चे? तो how Not exactly, sir. technique बच्चे? Aggregating means we need to unite particles. अगर मुझे unite करना बच्चे particles को, तो collides means particle size only. तो मुझे 1 to 1000 नैनोमीटर्स का पार्टिकल साइज मेंटेन करना है. तो अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा तो मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को यूनाइट करना पड़ेगा. गॉट इट बच्चे? तो दैट विल बी Yes, sir. टेक्निक.
अगर मैं सस्पेंशन के थ्रू आता हूँ तो पार्टिकल का साइज रिक्वायर्ड से बड़ा है तो मुझे उसको कट डाउन करना पड़ेगा, तो दैट विल बी सेग्रीगेटिंग टेक्निक। तो दो टेक्निक्स में कोलाइड्स बनते हैं मुझे। क्लियर सर? Clear, sir. दिलजीत, राशि, क्लियर है बच्चे चीजें? Yes, sir. चल लेट्स सी बच्चे, और ये बच्चे इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है पेप्टाइजेशन। अब मैं बच्चे पेप्टाइजेशन में ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइड्स में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं। मैं ये टेक्निक की बच्चे बात कर रहा हूं। अब यहां पे बच्चे आई विल बी हैविंग इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं लाइक चार्ज आयंस को इकट्ठे करूंगा बच्चे, राइट? अब मान लीजिए बच्चे मुझे मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज है से 0.1 यूनिट, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे कम से कम वैसे 10 आयंस इकट्ठे एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे तो कोलाइड बनेगा, राशि, राइट? Yes, sir. तो अगर मैं बच्चे लाइक चार्ज 10 आयन इकट्ठे करूंगा तो लाइक चार्ज आयंस को ज्यादा इकट्ठे करने में देयर विल बी मच मोर स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस। लाइक चार्ज आयन आप जितने ज्यादा इकट्ठे करोगे आपको उतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस फेस करनी पड़ेगी, ठीक है राशि? Yes, sir. अब मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल साइज है से अप्रोक्सीमेटली 0.9 नैनोमीटर्स, तो मैं वैसे सिर्फ दो ही आयंस इकट्ठे करूंगा तो भी मेरा कोलाइड बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. So which will be more easy, aggregating small size particle or aggregating large size particles? Large size. तो यहाँ पे बच्चे इस टेक्निक में ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स के बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है प्रेसिपिटेट। तो इस टेक्निक में प्रेसिपिटेट की एग्रीगेशन से कोलाइड बनाया जाता है बच्चे। तो व्हाट दिस टेक्निक इज बच्चे, मैं इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूं आप भी नोट करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बच्चे। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly precipitated substance into colloid by adding one of electrolyte and one of solution in excess. Such solution in excess is called peptizing agent. Is called peptizing agent. Are you with me? Now let me quote you an example here. See, मैं बच्चे एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिल्वर आयोडाइड का। हाई स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना बच्चे AgI प्लस KNO3 सर ना, राइट बच्चे? ये प्रेसिपिटेट बन गया। Yes, sir. अब मुझे इस प्रेसिपिटेट को कोलाइड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन एक्सेसिव अमाउंट में ऐड अप करेंगे, कोई भी एक इनमें से I added excess of silver nitrate, so this will be called peptizing agent. ठीक बच्चे? राशि अगर आप KI आप एक्सेस में ऐड करोगे तो that will be called peptizing agent बच्चे। अब आपके वेसल में सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट है प्लस एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट विल हैपन, इन दोनों में जो भी आयन कॉमन है वो आयन प्रेसिपिटेट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। सना जल्दी देखो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. Had it been potassium iodide peptizing agent तो आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब होता। तो इस टेक्निक से मैंने क्या किया बच्चे, अच्छे खासे कंपाउंड को चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास ऐसे केटाइंस
कि मैं एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दूंगा। देख पा रहे हो बच्चों? अब जब मैं इन कैटायंस की एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूंगा, डू यू रियलाइज स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस विल बी डोमिनेंट? बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस आएंगी बच्चे। हाँ जी बच्चों, देख पा रहे हो? Yes, sir. मैंने एक्सेस में ऐड किया था सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर आयन तो एब्जॉर्ब हो गया। जो नाइट्रेट आयन है बच्चे, वो इन सबको आउटर सर्कल से सराउंड करेगा। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में बचे क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिपल्शंस, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस है? क्या एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस होती हैं कि नहीं होती हैं? Yes, sir. होती है ना बच्चे। तब भी न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। क्यों? जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस हैं, उनसे कहीं स्ट्रॉन्ग मेसॉन पार्टिकल्स के कारण अट्रैक्शंस होती हैं। तो अगर आपको लाइक चार्ज पार्टिकल्स एक्यूमुलेट करने हैं, तो जितनी रिपल्शन है आपको उससे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दिस बिकम्स फिक्स्ड लेयर। राइट? तो जैसे हमने एक सिस्टम में एडअप किया, तो स्टिल यहाँ पे स्टार्टिंग में और कैटाइंस आ जाएंगे बच्चे। तो लाइकवाइज अ सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइजेशन बच्चे। जल्दी बच्चे देखो, चेक करो। इज दिस याद से बच्चे सी, इस चैप्टर में कोलाइड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, रादर दो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एक है फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना एंड कंपैरिजन ऑफ कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उनको प्रोडिक्ट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कोलाइड पे चार्ज चाहिए। तो या तो कोलाइड पे चार्ज बच्चे आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, या आपको प्रेडिक्ट करना होगा, और प्रेडिक्ट करने के लिए पेप्टाइजेशन इज द ओनली टेक्निक। हरी बच्चों, जल्दी बच्चे जरा चेक करो क्विकली, क्या आपको ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड आइडेंटिफाई करना समझ आया? सना जल्दी देखो बच्चे, मैं इसको Yes, sir. कन्वर्स पार्ट बच्चे पिक कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे एडअप किया था एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर मैं एडअप करता एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, तो फिर AgA के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता आयोडाइड आयन, तो देन इट वुड हैव बिकम एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अब जो भी रिएजेंट आप एक्सेसिव अमाउंट में एडअप करोगे, उसका कॉमन आयन एब्जॉर्ब होकर चार्ज इंड्यूस करेगा। हरी बच्चों, राशि इज इट ओके? क्लियर है बच्चे? Yes, sir. दिलजीत, लक्ष्य जल्दी देखो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य इज इट ओके बच्चे? सर नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रेट का है। बिल्कुल बच्चे, नाइट्रेट आयंस का। ओके सर। हरी बच्चे, अब दूसरा बच्चे मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इससे ना आप सिर्फ कोलाइड्स ऑफ मेटल प्रिपेयर करते हो। कोलाइड्स ऑफ मेटल्स, गोल्ड, प्लैटिनम मींस वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स, उनके कोलाइड्स। इसमें क्या किया जाता है बच्चे? आपने कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया बच्चे, पोटाशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, के पॉजिटिव सी नेगेटिव, और इसमें एक आउटर जैकेट में वी टेक फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, आपको जिस भी मेटल का आपको कोलाइड बनाना है, जिस भी मेटल का, व्हाट यू डू, उस मेटल के आर्क्स लीजिए, गोल्ड, ये भी गोल्ड की आर्क बची, और इनको सॉल्यूशन में शॉर्ट सर्किट कर दो, एक दूसरे टच कर दो। तो दीज आर मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। तो जैसा भी बच्चे इनको आर्क्स को शॉर्ट सर्किट करोगे, लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ नलिफिकेशन ऑफ चार्जेस। तो उससे मेटल एटम वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। राइट, वेपराइजेशन। ये जो आपने कूलिंग मिक्सचर पिक किया बच्चे, ये उन वेपर्स को कंडेंस करके पार्टिकल साइज बढ़ाकर कोलाइड्स में कन्वर्ट कर देगा।
तो इसमें दो चीजें हैं बच्चे, इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। जल्दी बच्चे, just by name it is important. So it is using evaporation, and second is condensation. और यहाँ बच्चे एक आपके लिए नोट बच्चे, यहाँ पे जो बच्चे बनता है कोलाइड ऑफ गोल्ड, दैट इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैसियस। ये एक टिंच देता है रिफ्लेक्शंस के कारण पर्पल कलर की। जल्दी बच्चे एक बार यहाँ तक का बच्चे क्विक रिव्यू पे कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। जल्दी देखो ना, आई एम कमिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट रिक्वायर्ड पार्ट। ये बच्चे रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन of colloids, that is lyophilic colloids। हरी बच्चे, अब मान लीजिए आपके पास बच्चे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, राइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिक्वायर्ड, is required for stabilization। हरी बच्चे, क्या आप चेक कर पा रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत कहां पड़ रही है बच्चे स्टेबलाइजेशन के लिए? सर समझ पा रहे हो बच्चे, वेयर इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबलाइजेशन? So to counteract repulsion. एग्जैक्टली। तो मुझे यहाँ पे तो इसलिए हर लायोफिलिक कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स लाइक सी, आप लोगों ने कभी बच्चे देखा होगा, नॉर्मली जब आइसक्रीम्स बनाते हैं ना, उसमें भी कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा NaCl डाला जाता है बच्चे, जेलेटिन की कोएगुलेशंस के लिए। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि आपको कोई भी कोलाइड स्टेबलाइज करना है, ऐड अप सम इलेक्ट्रोलाइट इन दैट। अब यहाँ पे बच्चे हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड अप कर रहे हैं ना, सही, हम कभी हार्डे-चुल्जेस रूल, मैं इसके बच्चे बात कर रहा था, हार्डे-चुल्जेस रूल। व्हाट दिस रूल इज, मेरे पास बच्चे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड है, इसमें मैंने ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से बच्चे X पॉजिटिव Y नेगेटिव। अरे बच्चे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, या इलेक्ट्रोलाइट का केटायन की जरूरत पड़ेगी, या इलेक्ट्रोलाइट के एनायन की जरूरत पड़ेगी बच्चे। व्हाट विल बी यूज्ड टू स्टेबलाइज पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड? इज इट केटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? Anion. एब्सोल्युटली बच्चे, है ना, ऑपोजिट आयन ही यूज होगा। तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को स्टेबलाइज कर रहे हो तो आपको एडेड इलेक्ट्रोलाइट का एनाइन चाहिए। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड आप स्टेबलाइज कर रहे हो तो आपको एडेड इलेक्ट्रोलाइट का केटायन चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, चार्ज कोलाइड, मैंने इसे स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया सोडियम क्लोराइड, एक मैंने ऐड किया सोडियम फॉस्फेट। जी बच्चे, which electrolyte seems more effective in stabilizing positively charged colloid? Is it NaCl or sodium phosphate? Both are assumed to be strong electrolytes। जल्दी बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, एक NaCl बच्चे मैंने ऐड किया, एक सोडियम फॉस्फेट। Which electrolyte will be more effective in stabilizing colloid? Phosphate. Perfect। Rashi, convinced? Yes, sir. Lakshay, convinced बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Reason बच्चे,
सोडियम क्लोराइड में मुझे मिलेगा क्लोराइड आयन, तो ये मेरे पास एनाइन है विद 1 यूनिट चार्ज, जबकि फॉस्फेट आयन पे मुझे चार्ज मिलेगा 3 यूनिट। दिस इज हार्टे शोल्जर्स रूल जो हमने अभी बात की बच्चे। जब आप कोई भी कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, हमेशा उस इलेक्ट्रोड का काउंटर आयन यूज होगा स्टेबलाइजेशन के लिए, और काउंटर आयन की स्टेबलाइजिंग एबिलिटी उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नॉट नंबर ऑफ आयन्स, चार्ज। अरे बच्चे, FSC AlCl3 जितनी स्टेबलाइजिंग पावर NaCl शो करेगा, एग्जैक्टली उतनी ही स्टेबलाइजिंग पावर AlCl3 यूज करेगा। सना, ये बात समझ आई बच्चे? Yes, sir. क्योंकि Yes, दोनों sir. का एनाइन सेम है, तो नंबर ऑफ एनाइंस इज नॉट गोइंग टू वर्क, सिर्फ उस आयन का चार्ज। दिलजीत, आर यू क्लियर अबाउट इट बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन की जो स्टेबलाइजिंग पावर है वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नॉट नंबर ऑफ आयन्स। So that's a rule I'm going to write, and this is 100% confirmed to strike in your exams. Rashi, understood? लिखो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे। Number 1, counter ion of electrolyte will be used. Number 1. Number 2, stabilizing power of ion of electrolyte will be directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge on ion and not number of ions. Clear बच्चों? अरे बच्चे, स्टूडेंट्स क्लियर बच्चे? राशि क्लियर है चीज़ ये बेटा? Yes, sir. दिलजीत, Yes, sir. all clear? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा यहाँ तक? No, sir. No, sir. अच्छा, लाइक से बच्चे, एक क्वेश्चन देखो। कंसिडर negatively charged colloid stabilized by falling electrolytes. K4 FeCN6, magnesium nitrate, aluminium sulfate, calcium chloride. Ariuchi, can you arrange these 4 electrolytes for stabilization of negative charge colloid to be used in decreasing order of their amount? आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज्यादा अमाउंट में एडअप करना पड़ेगा फॉर स्टेबलाइजेशन नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। जी बच्चे, एक मिनट, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ छोटा सा। जी बच्चे, all are assumed to be strong electrolytes. So you have to arrange these electrolytes in decreasing order of their amount required for stabilization of negatively charged colloid. दलजीत, आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ऐड करना पड़ेगा बच्चे? जो सबसे कम इफेक्टिव, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है बच्चे? सर जो ज्यादा इफेक्टिव है। जो ज्यादा इफेक्टिव आपको ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। नहीं सर, सॉरी, जो कम इफेक्टिव है। Sana, got this message? Yes, sir. Yes, sir. Rashi, got this message? Yes, sir. Yes, sir. तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए बच्चे मैं इलेक्ट्रॉन के साथ कैटाइंस देखूंगा।
किस इलेक्ट्रोड का कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग मोड में होगा? किस इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग पावर शो करेगा? हाँ जी बच्चों, जल्दी फटाफट। यहां से आपको मिलेगा पोटाशियम आयन, चार नहीं, पोटाशियम आयन बस। यहां से मिलेगा आपको मैग्नीशियम आयन, यहां से मिलेगा आपको एल्यूमिनियम आयन, यहां से मिलेगा आपको टाइटेनियम चार्ज 4+ आयन। Which cation will be most stabilizing? सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग पावर किस कैटायन की होगी बच्चे? जल्दी बच्चों, सना क्या लगता है बच्चे? So titanium. इट हैज अ मैक्सिमम चार्ज मैग्नीट्यूड, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग पावर टाइटेनियम कैटायन शो करेगा। राशि कन्विंस बच्चे? Yes, इसलिए sir. आपको सबसे कम अमाउंट में अडप करना पड़ेगा। थोड़ा सा अडप करोगे कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो जाएगा। किस कैटायन की स्टेबलाइजिंग पावर सबसे कम है बच्चे? Potassium. आपको सबसे ज्यादा अडप करना पड़ेगा पोटाशियम फेरोसाइनाइड, फिर मैग्नीशियम आयन की बारी आएगी, फिर एल्यूमिनियम आयन। तो आपको ये इस ऑर्डर में अडप करने पड़ेंगे बच्चे। ये दिलजीत जल्दी देखो बच्चे, क्लियर है? तो जितना इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उतने कम अमाउंट में चाहिए होगा स्टेबलाइजेशन के लिए। जितना कम इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा आपको उसे उतना ज्यादा अमाउंट में अडप करना पड़ेगा। इज दिस कोरिलेशन क्लियर टू यू दिलजीत सिंह? Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है बच्चे कि कुछ कंफ्यूजन है इसमें? देखो क्लियर सर। राशि क्लियर है बच्चे? Yes, sir. चलो अब हम आते हैं यहाँ पे पढ़ा कोएगुलेशन और फ्लॉकुलेशन वैल्यू। फ्लॉकुलेशन वैल्यू ये बच्चे एनसीईआरटी बुक्स में गिवन नहीं है, पर नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स में आती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स of electrolyte required the number of millimoles per liter of electrolyte required to stabilize colloid। आप कितने मिलीमोल्स ऐड करो इलेक्ट्रोलाइट के जिससे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो जाए बच्चे? दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉकुलेशन वैल्यू। हनी बच्चे, सबसे ज्यादा फ्लॉकुलेशन वैल्यू किसकी होगी? इलेक्ट्रोलाइट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो सबसे कम इफेक्टिव है बच्चों? Which electrolyte will have a largest flocculation value? That one which is most effective or that one which is least effective? Least effective. क्योंकि सबसे कम इफेक्टिव होगा इसलिए उसे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा आपको वो सबसे कम अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। दिलजीत, आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। है कुछ कंफ्यूजन बच्चे व्हिच यू वुड लाइक टू डिस्कस कि क्लियर है? क्लियर सर, एक्चुअली मैंने कुछ गलती इंटरप्रेट कर लिया था जब आपने पूछा था। श्योर, आगे चले बच्चे। दिलजीत, यस सर। राशि, कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चे? No, sir. बच्चे ऐसा ना बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने शीट पे डाला बच्चे आपका, हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बेटा। जल्दी बच्चे फटाफट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 1, एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की जा रही है। आर्सेनस सल्फाइड is negatively charged colloid. Sir, I didn't realize that we had to do 30 millimoles and 12 millimoles, so I tried to do it with molarity. अब प्लान अप क्लियर है बच्चे आपको? तो 30 मिलीमोल्स इज फ्लॉकुलेशन वैल्यू Now फॉर it's HCl,
तो HCl में H प्लस एन बच्चे यूज होगा, तो हमें 30 मिलीमोल्स H प्लस एन चाहिए, तो H2SO4 से भी 30 मिलीमोल्स H प्लस एन आएंगे इन 15 मिलीमोल्स H2SO4 एज इट्स बेसिस इज 2. तो दैट मीन्स अ लीटर सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 15 मिलीमोल्स H2SO4. तो 250 ml में कितना होना चाहिए? दैट इज 1/4. तो उसके हिसाब से बच्चे मैंने उसका मास Yes, कैलकुलेट sir. कर लिया. अंडरस्टूड? Yes, sir. शैल वी प्रोसीड? क्लियर बच्चे? Yes, sir. चलो लेट्स सी बच्चे. सो यहाँ बच्चे मैं एडअप करूँ फ्लॉकुलेशन वैल्यू. Flocculation value is inversely proportional to stabilizing power of electrolyte. जितनी stabilizing power कम होगी बच्चे flocculation value उतनी ज़्यादा होगी and vice versa. अब यहाँ ना बच्चे जैसे flocculation value है ना, there comes likewise gold number. ये बच्चे for stabilization of gold soul. गोल्ड का जो बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, दिस इज लायोफोबिक कोलाइड. यहाँ बच्चे ये भी एक ऐसा नंबर ही है बच्चे. सो फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ गोल्ड सोल कॉमा प्रोटेक्टिंग कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड इज रिक्वायर्ड. गोल्ड के बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें प्रोटेक्टिंग कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड अडॉप्ट करना पड़ता है. तो व्हाट इज गोल्ड नंबर? द नंबर ऑफ milligrams of protecting colloid required to stabilize gold soul. अरे बच्चे अब ये सिंपली बच्चे ये अगेन दिस टर्म इज नॉट इवन एनसीईआरटी बुक्स पर ये कॉम्पिटिशन पे यूज होती है. अब मान लीजिए बच्चे मेरे पास प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स हैं A, B, C, D and their gold numbers are एक है 0.01, एक है 250, एक है 0.25, एक है 5.83. ये है 4 प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स बचे जिनके गोल्ड नंबर हमें गिवन है. कैन यू आइडेंटिफाई which among these is most effective protecting colloid for stabilization of gold soul? सबसे इफेक्ट ए पार्ट absolutely. Why? It has been used in least amount and which is least efficient बच्चे? B part absolutely. B. So this is to be required in maximum amount. तो effectiveness of protecting colloid is inversely proportional to gold number. तो सबसे इफेक्टिव होगा बच्चे A, उससे कम C, उससे कम D, सबसे कम B. अरे बच्चों जल्दी देखो, इज इट क्लियर? दिलजीत क्लियर है बच्चे चीजें कि कुछ कंफ्यूजन है अभी इसमें? No, sir. It's clear. No, sir. It's clear. Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, मेरा sir. बच्चे कोलाइड खत्म हो जाएगा. कैन वी कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स मोर? कोई क्लास का इशू तो नहीं बच्चे आप लोगों का? जस्ट 10 to 15 मिनट्स No मोर, issues. ज़्यादा नहीं बच्चे. No issue, sir. लेट्स कंटिन्यू बच्चे. अब यहाँ पे ना बच्चे एक हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है प्यूरिफिकेशन. Purification of colloids. Now, what is this purification? अब जब आपको बच्चे कोई भी चीज़ आपको प्यूरिफाई करनी होती है ना, तो हमारा प्लान अब हमेशा क्या देखकर बनता है कि उसमें इम्प्योरिटी की नेचर क्या है, राइट? एंड सेकेंडली जो आपको इम्प्योरिटी की नेचर आपको कोट की जा रही है, इन व्हाट मैनर इम्प्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर्ड सब्सटेंस. तो उस डिफरेंस को पिक करके हम प्योरिफिकेशंस प्लान करते हैं.
तो डू यू रियलाइज बच्चे, अभी तक हमने अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए। क्या अभी पुरानी डिस्कशन इतनी एनालिसिस कर पा रहे हो बच्चे कि वी एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स टू स्टेबलाइज कोलाइड? कन्विंस? Yes, तो इसलिए Yes, हमारे sir. कोलाइड की इम्प्योरिटी है इलेक्ट्रोलाइट। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? अ पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल मेरी इम्प्योरिटी है कोलाइड्स में, तो मुझे उसे रिमूव करना है मुझे। तो इसके लिए तीन टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। सी व्हाट आर दोस टेक्निक्स? नंबर वन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। सिर्फ बच्चे बाय नेम देखो, कोई इनकी डिटेल्स आपको रिकॉर्ड नहीं है। आप सबके घर पे वॉशिंग मशीन है बच्चे, फुली या सेमी ऑटोमेटिक, राइट? आपने कभी उसका ड्रम देखा है बच्चे जो स्पिनिंग के लिए यूज होता है? दिलजीत सिंह कभी नजर मारी है बच्चे ड्रम पे उसके? Yes, sir. उस ड्रम में Yes, होल्स sir. होते हैं, देखे Yes, बच्चे sir. ड्रम से होल्स देखे बच्चे आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए इट इज स्पिनिंग Yes, ड्रम sir. ऑफ योर वॉशिंग मशीन एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी परफोरेशंस। बहुत सारी परफोरेशन होती है बच्चे, उस पे होल्स होते हैं। लक्ष्य देखा है बच्चे? और जैसे आप ये ड्रम को स्पिन करते हो तो अंदर आपके पास है वेट क्लॉथ, राइट? क्या वो परफोरेशन इतनी बड़ी है कि उससे कपड़ा ही बाहर आ जाए? हरी बच्चों, क्या इतनी इतनी बड़े होल्स हैं कि उनसे क्लॉथ ही बाहर आ जाए? No, नहीं। sir. तो जैसे आप इसे सेंट्रीफ्यूज करोगे, अंदर क्लॉथ एज वेल एज वाटर दोनों पे हाई एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट होगा, हाई एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वाटर कैन कम आउट ऑफ दिस परफोरेशन, तो ऑल वाटर विल कम आउट। तो वंस वाटर कम्स आउट योर क्लॉथ्स विल बिकम ड्राई। तो ऐसे ही मेरा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चे, इसे मैं कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं इसे परफोरेशंस के साथ सेंट्रीफ्यूज करूंगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल कम आउट ऑफ दोस परफोरेशन, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। हरी बच्चे क्लियर है टेक्निक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज? राशि क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा आता है बच्चे हमारी किडनीज जो काम करती हैं, डायलिसिस। अब मेरे पास बच्चे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो मैंने उस कोलाइडल सॉल्यूशन को किसी पार्चमेंट मेम्ब्रेन के बैग में, पार्चमेंट मेम्ब्रेन बैग में मैंने अपना कोलाइडल सॉल्यूशन एडअप कर लिया विद सम इलेक्ट्रोलाइट्स जो मुझे प्योर। अब जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन बैग है ना बच्चे, इस बैग में देयर विल बी सर्टेन होल्स, और होल्स का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें से ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल कैन मूव इन और आउट बट नॉट कोलाइड्स। तो व्हाट विल बी डन, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन बैग को हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। पर ध्यान रखना बच्चे, जो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की पार्चमेंट मेम्ब्रेन बैग के अंदर है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रोलाइट will start peeping out, और in the meantime आपका कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई हो जाएगा बच्चे। सना, इज इट ओके बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Comes by name as electrodialysis. This dialysis is too much time consuming, too much time consuming. तो what has been done in electrodialysis, क्या किया जाता है बच्चों? इसमें we dip electrodes with a very 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 minute current, almost microamperes, कि solution electrolytes नहीं हो। तो one electrode is positively charged, other is negatively charged। तो जो एनाइंस है बच्चे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट हो जाएंगे, और जो कैटाइंस है वो नेगेटिव पे माइग्रेट हो जाएंगे, एंड दैट वे योर प्योरिफिकेशन विल बिकम फास्टर। तो तीन टेक्निक्स हैं कोलाइड की प्योरिफिकेशंस को लेकर, अल्ट्राफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। जल्दी बच्चे जल्दी देखो फटाफट, कोई डाउट
यहाँ तक? सर हाँ जी बच्चे बोलो भी। सर सर वैसे हम रिवर्स और भी ऑस्मोसिस कर भी सकते हैं बच्चे, कर सकते एब्सोल्युटली हैं बच्चे। प्योरिफिकेशन यू के कैन लिए। डू इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, एब्सोल्युटली, या रिवर्स ऑस्मोसिस, एब्सोल्युटली यस, इट कैन बी डन टू डू द सेम, कोई इशू नहीं मुझे। तो दीज आर टेक्निक्स बच्चों, क्लियर है दिलजीत सिंह? चले आगे। यस सर। हरी बच्चे, यस सर। अब एक ना बच्चे, यहाँ पे एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई टोल्ड बच्चे जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर जर्नल साइंस का है, डेफिनेशन बेस्ड, पूरा डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर बच्चे, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। ये है बच्चे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन चार्ज, डिटर्मिनेशन चार्ज ऑन कोलाइट्स। तो व्हाट इज बीन डन, एक यूलिम ट्यूब लो, उस यूलिम ट्यूब में दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड डिप कर दो एंड फिल इट विथ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चे आर सी थ्रू और ओपेक टाइप। कोलाइडल्स आर क्लियर और ओपेक है ना बच्चे, Okay. these are not a clear solution, these are opaque solutions। अब इसमें जो चार्ज है ना बच्चे, that is on particles of dispersed phase, dispersed phase। तो इसमें से हम करंट पास करेंगे बच्चे, वही वेरी माइन्यूट करंट। तो थोड़ी देर के बाद करंट पास करने के बाद यू विल सी किसी एक इलेक्ट्रोड पे देयर विल बी थिक एक्यूमुलेशन एंड a solve will become clear solution। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपको थिक एक्यूमुलेशन नजर आया मान लीजिए, व्हाट विल बी एनालिसिस? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सना, व्हाट इज मीन बच्चे? Colloid particles so went to one electrode with a Exactly specific बच्चे। charge. So as thick accumulation is seen on positive electrode, तो आपके जो dispersed phase के particles से they were carrying negative charge, so that way they got all attracted onto positive electrode। तो इसलिए हमारा colloidal solution negatively charged था। What if accumulation is on a negative electrode? Converts। अगर इलेक्ट्रोड बच्चे, अगर accumulation आपको negative electrode पे नजर आती है तो means your colloid is negative positively charged। हरी बच्चों क्लियर है बच्चे टेक्निक की इलेक्ट्रोफोरेसिस? राशि इट्स ओके? Yes, sir. बच्चों कोई क्लास Yes, है sir. आपकी और इसके अलावा? राशि कोई क्लास है बच्चों और कि नहीं? No, sir. नहीं, No, sir. ऑलमोस्ट बच्चे कमिंग टू फिनिशिंग लाइंस। अब यहाँ पे बच्चे फाइनली हमारे पास आता है बच्चे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स होते हैं बच्चे तीन तरह के, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो लेट्स पिक दैम। What are these associated colloids? Up to low concentration, they behave as true solution, and at high concentration, they become colloids. ऐसा कुछ सब्सटेंस आपको बच्चे हाउस होल्ड या दिमाग में आ रहा है जो लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रू सॉल्यूशन बनाए, हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोलाइड्स बनाए? कुछ याद आ रहा है बच्चे माइंड में? Sugar solution. Sugar solution. I'll prefer to add up your soap solution.
आपने कभी बच्चे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, राइट, नॉर्मल 200 ml का, उसमें छोटा सा अमाउंट में सोप डिजोल्व करो, वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा, इट विल बी अ क्लियर सॉल्यूशन. सोप का अमाउंट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, it will become finally opaque kind. So they are called as they are called as which are associated colloids. So up to low concentration they will form true solution, and at high concentration they will form colloids. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे among these three. Once again बच्चे एनसीईआरटी में जब भी एक चैप्टर था तो इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बनती थी. यहाँ पे बच्चे कोलाइड्स के लिए मैं यहाँ पे दो टर्म्स एडअप कर रहा हूँ, critical micelle concentration number 1 and number 2 Kraft temperature. ये दो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं बच्चे जिन पर हमारा एसिड कोलाइड ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइड्स में चेंज होता है, राइट. तो व्हाट इज क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन? At CMC, true solution changes to colloid. So for colloids, concentration must be greater than CMC. सना ध्यान से बच्चा अडॉप्ट करना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चे इस चैप्टर का. सिमिलरली एट क्राफ्ट टेम्परेचर true solution changes to colloids. तो for colloids temperature आपका जो टेम्परेचर है, it has to be kept higher than Kraft temperature. ये दोनों चीज़ें बच्चे नोट कर लीजिए. Let me show you what are micelles, and that will be end because that will be getting us into emulsions. हरी बच्चे जल्दी बच्चे एक बार इसका रिव्यू ले लो. Excuse me, sir. प्लीज बच्चे बोलो. Excuse me, sir. Sir, in CMC, is it the concentration more than equal to or just more than CMC? It switches over. So for proper colloid you have to maintain concentration greater than CMC. Okay, sir. तो मान लीजिए Okay, CMC sir. बच्चे बनकर आता है 0.1 मोलर, तो आपको कोलाइड्स के लिए concentration 0.1 मोलर से ज़्यादा रखनी होगी. Yes, sir. है बच्चे. Yes, sir. For craft temperature बच्चे similarly. चलिए बच्चे एक बार quickly बच्चे से रिव्यू कर लीजिए. Let's move towards finishing line. For colloidal solution, concentration must be greater than CMC. ये लक्ष्य हो गया बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करें बच्चे यहाँ पे माइसेल्स. ये ना बच्चे जो टॉपिक है ना माइसेल्स, यही टॉपिक रीप्रिंट होके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में आता है लास्ट में बच्चे. व्हाट आर माइसेल्स बच्चे? ये बच्चे कंपाउंड्स which have hydrophilic as well as hydrophobic groups. Hydrophilic as well as hydrophobic groups. अब इसमें जो बचे हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, मीन्स attraction for water, that means polar. Hydrophobic बचे repulsion for water, means non-polar. तो माइसेल बचे एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट्स दोनों होंगे, और जो नॉन पोलर पार्ट है इट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 8 to 10 कार्बन्स मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे CH3 CH2 13 COONA, दिस इज सोडियम स्टीरेट. यहाँ बच्चे 15-14 कार्बन का बच्चे अल्काइल ग्रुप देख रहे हो,
देख पा रहे हो बच्चों? दिस ऑल इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, सना देख पा रहे हो बच्चे? Yes, sir. एंड दिस इज Yes, sir. हाइड्रोफिलिक. Do you see बच्चे? Both of these parts are present in anionic part of compound. Diljit, right? Yes, sir. So this will be labeled Yes, as sir. anionic micelles. What will be cationic micelles? Do you see bachcha this hydrocarbon part owing to 16 carbons? ये hydrophobic part बच्चे, and this is polar hydrophilic. This will be labeled as cationic micelles. जल्दी बच्चों देखो, तो they can be cationic micelles, they can be anionic micelles, they can be double micelles. Rashi, what will become double micelle बच्चे probably? Subcoordination नहीं, उसमें compound. केटानिक पार्ट में भी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा, एनानिक पार्ट में भी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा. Okay, sir. सना Okay, अंडरस्टूड? sir. Yes, sir. अब ये जो Yes, माइसेल्स sir. हैं बच्चे, हम इन माइसेल्स को प्रेजेंट करते हैं अ टेल विद अ सर्कुलर हेड. दिस सर्कुलर हेड डिनोट्स पोलर पार्ट, दिस टेल इज नॉन पोलर. जल्दी बच्चों, अब मान लीजिए बच्चे, मैंने बच्चे, अच्छा यहाँ बच्चे माइसेल में करेक्टरिस्टिक एडअप कर रहा हूँ. माइसेल्स dissolve in both polar and non-polar solvents. Diljit Singh, are you convinced with this? Yes, sir. Sana, Yes, Lakshmi, sir. Rashi, are you people convinced? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए Yes, बच्चे sir. मैंने यहाँ पे लिया water. This is water. Polar. तो जैसे मैं माइसेल एडअप करूंगा ना बच्चे, तो इसमें polar part will be getting dissolved in water, right? और सारी की सारी जो polar cavities हैं बच्चे, और non polar cavities will accumulate. ये इस वेज में एग्जिस्ट करेगा, and this happens at concentration greater than CMC. यहाँ पे बच्चे अगर आप ध्यान से आप देखो, आर यू एबल टू नोटिस कि मैंने एक नॉन पोलर कैविटी जनरेट कर दी हाइड्रोफोबिक पार्ट की? देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू नोटिस बच्चे, ये एक नॉन पोलर कैविटी आ गई. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. The reason behind cleansing action of soap. अगर आप एक डर्टी क्लॉथ बच्चे नॉर्मल प्योर वाटर में स्क्रब करते हो, वो डर्ट कभी भी रिमूव नहीं होती, बिकॉज डर्ट इज ऑयल और ग्रीस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती. वो वाटर में अगर डिजोल्व होगी तभी वो कपड़े से रिमूव होगी. तो जब आप सोप सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे मिलियंस ऑफ रीजन जनरेट हो जाते हैं बच्चे, मिलियंस ऑफ रीजन लाइक दिस. तो जैसा भी मैं डर्टी क्लॉथ आप स्क्रब करते हो, जैसे मैंने डर्टी क्लॉथ स्क्रब करोगे तो वो सारी की सारी डर्ट एंड डस्ट इस नॉन पोलर कैविटी में जाके डिसॉल्व हो जाती है, हेंस इट इज रिमूव फ्रॉम क्लॉथ. अंडरस्टूड? अरे बच्चों जल्दी देखो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं क्या Yes, sir. Yes, मैं यही माइसेल्स अब किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता था. सो इट इज सम नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो व्हाट विल हैपन, अब माइसेल्स ऐसे इंक्लाइन रहेंगी बच्चे, देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट विल बी इनसॉल्वेंट. तो ये
एक पोलर कैविटी बना देंगे मुझे। तो क्या आपको ये बच्चे पोलर कैविटी नजर आ रही है बीच में? देख पा रहे हो बच्चे पोलर कैविटी? Yes, sir. Yes, sir. जब बच्चे माइसल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर रीजन क्रिएट कर सकते हो, आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर रीजन क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट्स आप सब ने बच्चे ट्राई किया, टेस्ट किया होगा बटर, अमूल्स बटर। बटर इज बेसिकली फैट, राइट, हाइड्रोफोबिक कंप्लीटली। फिर उसमें NaCl डिसॉल्व कैसे हुआ दिलजीत सिंह? बटर तो हाइड्रोकोवेलेंट कंपाउंड है, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट NaCl डिसॉल्व कैसे हुआ बच्चे? राशि, एनी आइडिया? So, आज तक से खाया था, सोचा नहीं था, क्यों दिलजीत सिंह? Yes, sir. है ना बच्चे? तो दैट्स राइट आंसर बच्चे। Yes, अगर sir. बटर की कॉम्पोजिशन पढ़ो ना बच्चे, यू विल फाइंड इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ emulsifying agents. Emulsifying agents is an optional name for micelles. तो उन emulsifying agents को यूज करके आप बटर में नॉन पोलर मीडियम में पोलर कैविटी जनरेट कर देते हो, उसमें NaCl डिसॉल्व हो जाता है। सना समझ आया बच्चे? Yes, sir. है बच्चे? सो दिस इज Yes, sir. कि हम इन्हीं को बच्चे कोड करते हैं emulsions, generating a medium out of its nature, right? हरी बच्चों, just बच्चे see properties of colloids। जितने colloids हैं ना बच्चे, ये दो बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज शो होते हैं। वन इज बाय नेम एज अ ब्राउनियन मूवमेंट, बस मैं इससे सेंड करूँ मुझे, एंड सेकंड इज बाय नेम एज अ टिंडल इफेक्ट। फिजिक्स में पढ़ा बच्चे आप लोगों ने दोनों चीजें, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट? Tyndall effect only. टिंडल इफेक्ट बच्चे, Tyndall effect only. ब्राउनियन मूवमेंट बच्चे, जो मान लीजिए मेरे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इट इज सम कोलाइड, तो जो उसके पार्टिकल्स है ना, दे विल बी इन कांस्टेंट रैपिड मोशन, सो दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जी सर, कैन यू थिंक अबाउट बच्चे, कैन यू आंसर कि व्हाई पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन? ऑल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स फेस। राशि जल्दी बच्चे, लेट्स फिनिश ऑफ फटाफट। Sir, जी बच्चे, due to Sir? the presence of thermal energy, that Due to the molecule presence of thermal energy, charge, that molecule. so these molecules will be charged, so they will be strongly repelled with each other, तो उस रिपल्शन के कारण दे नेवर कम एट रेस्ट। अगर आपने कोएगुलेट कर दिया तो ये प्रेशर बन के डेड हो जाएंगे, अदरवाइज दे विल बी इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। जी बच्चों, क्लियर है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सना क्लियर बच्चे? Yes, sir. Now, Tyndall effect बच्चे, Yes, what sir. is Tyndall effect बच्चे? अगर means it is a phenomena in which light is scattered by particle when seen in tangential perpendicular direction। जैसे मॉर्निंग टाइम में बच्चे आपके रूम में लाइट पीप करती है, तो उस लाइट का पूरा एक पाथ विजिबल हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स में। यही पढ़ा बच्चे आप लोगों ने फिजिक्स में। अब यहाँ पे बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो एड करनी है, दैट इज दिस ओनली, टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड के इक्वल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या उससे बड़ा होना चाहिए। जी बच्चों जल्दी फटाफट, Equal. इट शुड बी ग्रेटर देन दैट। Equal. तो टिंडल इफेक्ट बच्चों ऑब्जर्व करने के लिए पार्टिकल साइज वेवलेंथ यूज से छोटा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट बच्चे। तो ये चीज बच्चे टिंडल इफेक्ट के रेफरेंस में एडप्ट कर लेना। जी राशि, लेट्स गो ऑन फिनिशिंग नोट बच्चे।
एक सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट तो शो नहीं कर रहा लेकिन टेंडल इफेक्ट शो कर रहा है. व्हाट इट इज? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड या सस्पेंशन? जी सना, व्हाट अबाउट यू बच्चे? Suspension. करेक्ट बच्चे, सस्पेंशन डू नॉट Suspension. तो सस्पेंशन ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करेगा बच्चे. टेंडल इफेक्ट डेफिनेटली शो करेगा क्योंकि उसका पार्टिकल साइज क्लॉइड से भी बड़ा होता है. तो बच्चे टेंडल इफेक्ट में ये लिख लेना कि वेवलेंथ जो यूज़ की जाती है पार्टिकल साइज उससे बड़ा होना चाहिए बच्चे. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में बच्चे इसमें सी कुछ कोलाइडल्स के एग्जाम्पल्स हैं बच्चे. कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं कोलाइड्स के. रादर आई वुड से एप्लीकेशन. नंबर वन, डेल्टा फॉर्मेशन. नंबर टू, artificial rain. Diljit Singh, any idea about delta formation and artificial rain बच्चे? No, sir. No idea. No, राशि, sir. सना, कुछ आइडिया बच्चे? डेल्टा फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल रेन्स? No, sir. नहीं बच्चे. No, sir. डेल्टा कहाँ बनता है? This is some river. It is merging with sea. यही डेल्टा बनता है बच्चे. Am I right? Yes, sir. बच्चे, जो रिवर है ना बच्चे, Yes, sir. it bring lots so many silicates with it. बहुत सारे मिनरल्स लेकर आती है रिवर. Silicates are SiO4, charge 4 negative. They are strongly repelled. और जहां रिवर सी से मिलेगी, what sea contains? Salts. तो सिलिकेट्स के चार्ज की नलिफिकेशन नजर आ रही है बच्चे आप लोगों को? हरी बच्चों, Yes, आप कोई भी रिवर देखो बच्चे, इट Yes, sir. ऑफ सैंड विद इट. तो जैसे वो सी पे मिलेगी बच्चे, तो जो सिलिकेट्स के जो कोलाइड्स हैं, तो बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस दे डू नॉट एग्रीगेट, वो कंबाइन नहीं होते बच्चे. जैसे वो सी से मीट करेंगे तो सी के सॉल्ट सिलिकेट्स के चार्ज की नलिफिकेशन कर देंगे. तो एज द चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड दे विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटिंग. तो उनके एक्यूमुलेशन से like see a sand bed is created, that is a delta formation. So delta formation is a best example of coagulation of your colloids. So it is due to nullification of charges on silicates in river by salts of sea water. हरी बच्चे, सना, right? Clear? Yes, sir. ये बच्चे एक एक लाइन करके लिख लेना. Yes, sir. This is important. हरी students, what causes artificial rain? एक क्लाउड है बच्चे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड दैट वाज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड. आई एम सॉरी, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बच्चे. वाटर क्लाउड इज एग्जांपल ऑफ कोलाइड बच्चे. तो आर्टिफिशियल रेन कब होती है बच्चे? जब वाटर का मास क्रिटिकल मास से बढ़ जाएगा तो विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन एंड दैट ब्रिंग्स रेन. राशि, राइट? क्लियर? Yes, sir. तो आर्टिफिशियल रेन क्या की Yes, जाती है? sir. इस क्लाउड में सिल्वर आयोडाइड बर्स्ट किया जाता है, बर्स्टेड इन क्लाउड्स. तो सिल्वर आयन क्या करेगा बच्चे? इनके चार्ज की कर देगा नलिफिकेशन. दिलजीत सिंह, क्लाउड्स में कोलाइड का चार्ज न्यूट्रलाइज होता नजर आ रहा है बच्चे सिल्वर आयन से. Yes, sir. तो वाटर मॉलिक्यूल्स चार्ज Yes, न्यूट्रलाइज sir. होने के कारण नाउ दे वॉन्ट बी रिपेल्ड, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. तो वंस दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग देयर मास कीप्स ऑन ग्रोइंग. तो जैसे वो क्रिटिकल मास अटेन कर जाएगा इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन इन फॉर्म ऑफ अ रेन. तो आर्टिफिशियल रेन इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ कोलाइडल फॉर्मेशंस. हरी बच्चों, क्लियर है? जी सना, इज इट ओके? Clear, sir. क्लियर बच्चे? तो ये दो पॉइंट्स बच्चे Clear, sir. लेना इंपॉर्टेंटली.
ठीक है, तो अब इसे बच्चे मैं यहीं पर ही बंद कर रहा हूँ, राइट। फिर हम लोग बाकी बच्चे डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टाइम, ठीक है बच्चों। तो लेट्स हैव अ नेक्स्ट डिस्कशन। बच्चे मैं ना आप लोगों का एक सेशन शायद कल रात को ऑर्गेनाइज करूँगा फॉर दैट मेटलर्जी, ठीक। अब आप लोगों ने एक काम करना है बच्चे, इसमें मेरा एक छोटा सा डिस्कशन रह गया है आपका कैटलिस्ट का, ठीक है। तो जो शीट में मैंने उसका मैकेनिज्म शो किया हुआ है, एक बार आपको इस कंटेंट को एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। सना बच्चे एंड यू ऑल एनसीईआरटी बुक मिस मत करना, एक बार उसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ो बच्चे, इस पूरे कंटेंट को, ठीक है। और जो शीट मैंने आप लोगों से शेयर की है, मैं उसकी आंसर की भी शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार उससे ट्राई कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट कल रात को बच्चों सेशन आपका रखूंगा इन विच विल डिस्कस मेटलर्जी। तो हम नेक्स्ट क्लास परसों थोड़ा सा अपना कैटलिस्ट खत्म करके विल मूव ऑन टू पी ब्लॉक, ठीक है। चलो ओके बच्चों, सर जी मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ बच्चों, दलजीत Sir? just a minute। यस सर Yes, sir.